Hello everyone. I hope you all are doing good. I am back with another video and the topic is output devices. So today we are going to discuss about what is output device and few of the examples of output devices. So let's get started. Output devices. So today we are going to discuss about the following output devices. Number 1 is monitor, then printer, projector, speakers and headphones. Let's see what is the definition of output device. The device that is used to give the output to the user is referred to as output device, or you can write the definition as output device is a device that displays the result of the raw data which is processed for the user. So output device की definitions ये दो definitions हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो, even you can use both as well. So output device क्या है? वो डिवाइस जिस पर यूज़र को आउटपुट मिलता है उसे हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। या फिर एक आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस है जो कि हमारे को एक आउटपुट या एक रिजल्ट डिस्प्ले करता है रो डेटा का, जो हमने एज इनपुट दिया था कंप्यूटर को, जिसको उसने प्रोसेस करके उसका रिजल्ट आउटपुट स्क्रीन पर शो किया है। So this is the definition of output device, and the examples for output devices are monitor, printer, projector, speakers and headphones. So we are going to discuss all these individually. Let's start with monitor. Monitor is the most commonly used output device. It is also referred to as visual display unit. When we ask for any result for the input given to the computer, then it will display the result on the monitor. It usually displays the processed data or the result on the screen in the form of one is text, other is audio, then video or images, etc. Now the examples of monitor are CRT monitor, LCD monitor, LED monitor और प्लाज्मा मॉनिटर। मॉनिटर हमारा सबसे कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस है। इसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। जब भी हमारे को कोई रिजल्ट चाहिए होता है किसी भी डेटा के रिगार्डिंग, तो हमारे को वो इनपुट देना पड़ता है। इनपुट देने के बाद जब उस पर प्रोसेसिंग हो जाएगी, उसके बाद जो रिज़ल्ट हमारा डिस्प्ले होगा वो कहाँ पर डिस्प्ले होगा? मॉनिटर के ऊपर। अब ये जो रिज़ल्ट हमारा जो डिस्प्ले हो रहा है, जिसको हम प्रोसेस डेटा भी बोल रहे हैं, वो जो स्क्रीन पर मॉनिटर पर डिस्प्ले हो रहा है वो कौन सी फॉर्म में हो सकता है? वो या तो टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है और इवन इमेजेस ऑल्सो। और इसके मॉनिटर के जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन से हैं? CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर, LED मॉनिटर एंड प्लाज्मा मॉनिटर. Alright, let's move towards the second output device, that is printer. Let's see what are the key points for printer. So printer is an output device that is used to generate the output or the result in the form of hard copies. It accepts the input command given by the users on the computer and print the document as the output. The document can be of any type, like text files, images or combination of both. It enables the user to print the things like images, text or even other information on the paper. Examples for printer are inkjet printers, laser printers, dot matrix printers, 3D printers and many more. प्रिंटर एक अनदर आउटपुट डिवाइस है जो कि हम यूज़ करते हैं कि अगर हमारे को कोई आउटपुट हार्ड कॉपी की फॉर्म में चाहिए तो तब हम प्रिंटर को यूज़ करते हैं। जैसे आपका कोई भी डेटा है जो आपने डॉक्यूमेंट की फॉर्म में या अपने पिक्चर्स की फॉर्म में आपने स्टोर करके रखा हुआ है अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, बट अगर आपको उसका हार्ड कॉपी चाहिए, वो जो आपने स्टोर करके रखी है अपने कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर, दैट इज़ द सॉफ्ट कॉपी। लेकिन अगर उसी का आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए इन हैंड, वो क्या होता है? हार्ड कॉपी। तो अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट के अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप क्या यूज़ करोगे? प्रिंटर। अब जो प्रिंटर है वो क्या करेगा? वो आपसे एज इनपुट क्या लेगा कि आपको कौन सी चीज़ का प्रिंट आउट चाहिए। सो जिस भी चीज़ का आपको प्रिंट आउट चाहिए, अगर आप उसको कमांड दे रहे हो कि मुझे इस पर्टिकुलर पेज का या इस पूरे डॉक्यूमेंट का या इन इमेजेस का मुझे हार्ड कॉपी चाहिए, सो बाय गेटिंग द इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिंट, जो प्रिंटर है वो हमारा वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स एज इट इज़ प्रिंट करके आपको हार्ड कॉपी की फॉर्म में दे देगा।
अब ये जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ भी हो सकता है जो आपको प्रिंट आउट में चाहिए। वो कोई टेक्स्ट फाइल्स हो सकती हैं, इमेजेस हो सकती हैं, या कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। आप कोई रिपोर्ट आप को प्रिंट निकालना है किसी अपनी रिपोर्ट का जिसमें आपने टेक्स्ट भी यूज़ कर रखा है, इवन यू हैव यूज्ड सम इमेजेस, सो वो भी आपकी एज हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी बाय यूजिंग प्रिंटर। प्रिंटर के एग्जाम्पल क्या है? इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, 3D प्रिंटर्स एंड और भी बहुत सारे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंटर. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट output device, that is projector. Let's see the key points. Projector is another output device that takes the document, PPT, images given to the computer and produces the same on the screen or on the wall. It usually projects the output on the screen, which is same as that on the computer system but quite large in size. Projectors are most commonly used in classrooms, office presentations, training sessions, auditoriums, etc. Also, projectors can be used as an alternative to television or monitor in large gatherings. What are the examples for projector? LCD projectors, DLP projectors, etc. प्रोजेक्टर क्या है? ये प्रोजेक्टर आई थिंक आप सब लोगों ने प्रोजेक्टर अपने क्लासरूम्स में ज़रूर देखे होंगे, बिकॉज वी आर हैविंग नाउ स्मार्ट क्लासरूम्स। तो वहाँ पर आपके पास स्कूल से ही अपने क्लासरूम में आप प्रोजेक्टर्स देखते आ रहे हो। तो प्रोजेक्टर क्या करता है? आप अपने लैपटॉप पर जो भी काम कर रहे हो, जो भी आप डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे हो या प्रेजेंटेशन देख रहे हो, तो वो अगर आपको एनलार्ज फॉर्म में चाहिए, क्योंकि हमारी लैपटॉप की स्क्रीन एक फिक्स्ड साइज़ है, राइट? तो अगर आपको उसको बहुत एनलार्ज फॉर्म में देखना है, या जहाँ पर आपको पता है कि जो क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पर आपको उस पूरे डॉक्यूमेंट को एक एनलार्ज फॉर्म में सब स्टूडेंट्स को ताकि विजिबल हो, दिखाना हो, तो उसमें हम प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं। तो जो प्रोजेक्टर है उसके लिए या तो आप एक स्क्रीन यूज़ कर सकते हो जहाँ पर उसका प्रोजेक्टर का आउटपुट जो आपके लैपटॉप पर दिखाई दे रहा है, सेम स्क्रीन आपकी उस बिग स्क्रीन पर, प्रोजेक्टर स्क्रीन पर दिखाई देगी। और अगर नहीं तो आप वॉल के ऊपर भी, दैट अ क्लीन वॉल शुड बी देयर, तो अगर आप वहाँ पर भी अगर आप दिखा रहे हो तो दैट विल बी विजिबल। ये प्रोजेक्टर्स हमारे क्लासरूम में तो होते ही हैं, बट ऑफिस प्रेजेंटेशंस में भी काम आते हैं। इवन अगर आप ट्रेनिंग सेशंस देखो तो वहाँ पर भी प्रोजेक्टर का यूज़ करके टीचर्स दे यूज़ टू टीच टू द स्टूडेंट्स। ऑडिटोरियम्स में वहाँ पर भी आपको बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स दिख जाएंगे, और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? LCD प्रोजेक्टर्स, DLP प्रोजेक्टर्स एंड मैनी मोर. All right, let's move towards the fourth output device, and that is speakers. So these are the key points. Speaker is most commonly used output device which is used to give the output as a sound. It produces an audio as an output for the listeners. Internal speakers are already there in computer or laptop, but if you want to increase the sound, then you can plug in the external speakers. Examples: Bluetooth speaker, loudspeaker, ceiling speakers, etc. Speaker क्या है? Another output device है, most commonly used output device है because everyone is using this, जो कि कैसा output provide करती है? As a sound. अगर आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हो, ऑडियो सुन रहे हो, तो वो आप वो आप स्पीकर्स पर भी सुन सकते हो। हमारे जो कंप्यूटर हैं और लैपटॉप हैं उसके अंदर इंटरनल स्पीकर्स पहले से ही आते हैं, दोज आर इनबिल्ट। बट अगर क्योंकि हमारे को अगर उससे ज़्यादा आवाज़ चाहिए, थोड़ी और लाउड चाहिए, तो हमारे को क्या चाहिए? एक स्पीकर चाहिए। दोज आर द एक्सटर्नल स्पीकर्स, एंड यू कैन प्लग इन दोज एक्सटर्नल स्पीकर्स विद योर लैपटॉप और योर कंप्यूटर टू इंक्रीज द साउंड। ब्लूटूथ स्पीकर हो सकते हैं, लाउड स्पीकर्स हो सकते हैं, सीलिंग स्पीकर्स हो सकते हैं। सो ये सारे जो स्पीकर्स हैं वो हमारे एग्जाम्पल्स हैं फॉर स्पीकर्स. Now moving towards the last output device, that is headphones, and here are the key points for headphone. Headphone is another output device. It is also referred to as earphones. It can be directly plugged to the laptop or a computer, and one can listen to the audio or watch movies without disturbing anyone else. These are plug and play devices. There is no need of any installation before use. And the examples are classic headphones, open back headphones, closed back headphones, earbuds, Bluetooth headphones, and etc. अब हेडफोन्स क्या है? हेडफोन्स अनदर आउटपुट डिवाइस है
जिनको हम ईयरफोन्स भी बोलते हैं, बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाली आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हेडफोन्स हम यूजुअली अपने बैग्स में कैरी करके रखते हैं कि कभी भी नीड पड़ सकती है, जस्ट बिकॉज कि जैसे स्पीकर है, स्पीकर में क्या है कि अगर आपको कोई भी ऑडियो सुन रहे हो या कोई मूवी देख रहे हो तो ऑब्वियसली एवरीवन एल्स कैन ऑल्सो listen to that particular music, but the thing is the speaker sometimes disturbs other people. But if you want to listen for your own and you don't want to disturb anyone else, so what you can do is you can put on the headphones. अब headphones में अगर आप कोई भी अगर आप सॉन्ग सुन रहे हो या मूवी देख रहे हो, सो कोई और डिस्टर्ब नहीं होने वाला, बिकॉज उसकी आवाज़ सिर्फ आप तक रहने वाली है, कोई और नहीं सुन पा रहा है उसको। और ये हमारी वही कैसी डिवाइस है, एक प्लग एंड प्ले, आपको डायरेक्टली बस हेडफोन्स को प्लग करना है अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर पर, एंड यू कैन डायरेक्टली लिसन टू द म्यूज़िक। और कोई इंस्टॉलेशन की नीड नहीं है कि इसके लिए प्रायर हमारे को कोई इंस्टॉलेशन चाहिए इसको यूज़ करने के लिए, नो, नथिंग लाइक दैट। कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हैं? क्लासिक हेडफोन्स, ओपन बैक हेडफोन्स, क्लोज्ड बैक हेडफोन्स, ईयरबड्स, ब्लूटूथ हेडफोन्स, etc. So yeah, these are all the examples of output devices that we have discussed. And yes, this is it for today's video. I'll be back with another video very soon. Till then, stay safe and take a very good care of yourself. And also, stay tuned to my channel. And you know the drill. Like, share and subscribe to my channel. Bye bye.